Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the lecture of Rules of Accounting. Friends, before discussing the rules of account, first we have to focus on types of account. In the accountancy, there are two types of account: personal account and impersonal account. And impersonal account is divided into two parts, that is real account and nominal account. दोस्तों, रूल्स डिस्कस करने से पहले हमें यह देखना होगा कि अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटेंसी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और ये जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है उसके और दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो आइए दोस्तों, इनको डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, and the definition is a account which is related to any person is called a person account. My friend, account related to any person is called a personal account. So person means what? Friends, person includes the things which you know, that is male or any female, that is individual. Any individual like male or female is called as a person. But my friend, apart from this, any Hindu undivided family business, that is HUF, is also called as a person. Any partnership firm is also called as a person. Any organization which is registered by the Company Act, so the company is also called as a person. Any charitable trust like temple, gurudwara, church, etc., is also called as a person. Any educational institutions like university, schools, colleges is also called as a person. And government offices like municipal corporation office is also called as a person. So friends, all these things is included in the definition of person, and thus the account which is related to all these things is called as a personal account. दोस्तों, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो अकाउंट किसी व्यक्ति से मतलब पर्सन से रिलेटेड होता है उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अभी व्यक्ति का मतलब क्या होता है वो हमें जानना होगा। देखिए, हमें इतना पता है व्यक्ति में क्या आता है, कोई मेल और फीमेल मतलब इंडिविजुअल पर्सन, इसे हम व्यक्ति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कोई HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अगर होता है तो उसे भी पर्सन कहा जाता है। कोई पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसे भी बाय लॉ पर्सन कहा जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, मतलब कोई कंपनी भी अगर होती है तो उसे भी पर्सन कहा जाता है। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो, मतलब जैसे कि टेम्पल है, गुरुद्वारा है, चर्च है, इन्हें भी पर्सन कहा जाता है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेज, स्कूल्स या यूनिवर्सिटी, इसे भी पर्सन कहा जाता है। या कॉरपोरेशन का ऑफिस मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस को भी पर्सन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पर्सन्स में कितने लोग इंक्लूड होते हैं। तो इन सभी लोगों से जो भी अकाउंट रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। Now we are going to discuss the impersonal account, and the definition is very easy, my friend. A account which is not related to any person is called a impersonal account. जी हाँ दोस्तों, जो अकाउंट किसी पर्सन से मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है उसे हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। और ये जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। चलो देखते हैं अभी रियल और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। रियल अकाउंट, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी एसेट्स और गुड्स इज कॉल्ड अ रियल अकाउंट। किसी एसेट्स या गुड्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट डू मीन बाय एसेट्स? फ्रेंड्स, assets means the property of the businessman, like building, machinery, factory, computer, mobile, all these called as a assets. So the account which is related to all these things, that is called as a real account. Friends, the assets is divided into two parts, that is fixed assets and current assets.
tangible assets and intangible assets. In this way, the asset is divided. Now, tangible assets means what? Assets which can be seen, which can be feel, that is called the tangible assets. For example, building, machinery, which can be seen, which can be feel, and that's why it is called as a tangible asset. But my friend, there are some assets which cannot be seen, which cannot be feel. It is called as intangible assets. For example, goodwill. Goodwill is the assets of the organization which cannot be seen, which cannot be felt, even though it is called as a asset. So my friend, the account which is related to all these assets is called as real account. Apart from this, the account which is related to goods is also called as uh, real account. Now goods means what? Goods mean day-to-day activity of the business. That is, into the day-to-day activity of the business purchase and sells some things, that is called as a goods. For example, friends, if the businessman having a business of furniture, so the day-to-day activity of purchase and sales is table, chairs, cupboard, all these things is a goods for a furniture's business. If you are talking about the book depot, that is a book stalls. So for the bookstall purpose, business purpose, the goods is books, notebooks, register, pen, pencil, stationery is called as a goods. So my friend, a day-to-day activity, that is purchase and sales things of any business, is called as a goods. So the friend, the account which is related to any assets and goods is called as real account. दोस्तों, जो अकाउंट किसी एसेट से या किसी गुड से संबंधित होता है उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट. अभी एसेट्स का मतलब क्या? एसेट का मतलब किसी बिजनेसमैन के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं एसेट. जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसके पास व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सभी उसकी एसेट्स होती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है. तो इन प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं. फ्रेंड्स, ये जो एसेट्स होता है इससे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में डिवाइडेशन होता है. टेंजिबल एसेट मतलब क्या? जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम हाथ लगा के छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंजिबल एसेट. तो दोस्तों, बिल्डिंग हमें दिखती है, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं. मशीनरी, यस वी कैन सी, वी फील इट. तो ये जो एसेट्स होती है जिसको हम देख सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, स्कूटर, मोबाइल, इसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स. लेकिन फ्रेंड, जो एसेट्स हमें आंखों से दिखती नहीं है और जिसे हम छू भी नहीं सकते, जिसे हम फील भी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट. जैसे कि गुडविल. तो गुडविल होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट. तो दोस्तों, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो या अदर कोई एसेट्स हो, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं. इसके अलावा गुड्स को भी रियल अकाउंट कहा जाता है. गुड्स मतलब किसी भी बिजनेसमैन अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जो थिंग्स परचेस या सेल्स करता है रेगुलरली, उसे कहा जाता है गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो वो डे टू डे एक्टिविटी मतलब टेबल, चेयर्स, कपबोर्ड, ये चीज़ें परचेस सेल्स करता है, तो उसे कहा जाता है गुड्स. अगर कोई बुक स्टॉल है तो बुक स्टॉल के लिए गुड्स क्या होगा? बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, ये सभी चीज़ें उसके लिए गुड्स हो सकती है. तो देखिए, तो गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट. Now we are going to discuss the nominal account, a account which is related to any expenses, losses, gains and income is called as a nominal account. Now my friend, expenses. What do you mean by expenses? Expenses means amount spent for any economic benefit is called as expenses. Amount spent for any economic benefit is called as expenses. For example, salary, rent, freight, stationery, this is all our expenses. Now friend, when we paid the salary to the employee give us the his service for a month, and that's why we pay him the salary. So it is called economic benefit. We pay the rent because we use the property for a month, and that's why we pay the rent, and that's why we take the economic benefit from that rent. So my friends, when we take the economic benefit, that is called as a expenses. But my friend, there are some expenses or amount spent
under which there is no economic benefit, that is called as a losses. For example, friend, goods which we purchased for rupees 10,000 and we sold for rupees 8,000. Now here we sell the goods below 2,000 of their purchasing price. That is, we suffer a loss. There is no economic benefit over here. So it is called as a losses. So the friend, account include of expenses, losses, gain and income is called a nominal account. Now what is gain? Gain means profit. When we sell it more than its purchasing price, it's called as a profit. For example, when we purchase anything for rupees 10,000 and we sold it for rupees 12,000, that is excess with 2,000 earned, that is called our profit. And the next one, that is income, friend. Income means any individual, any person when received a cash, it is called as income. The cash, the source of incoming cash. So there are various sources. That is salary. When we received the salary, we received the cash. When we received the rent, that is received the cash. When we deposits into the bank account, we received the interest on that deposit, that is our income. When we invest into shares, we got a dividend, that is our income. So my friend, any types of cash received to the person is called as income. So the friends, the account which is related to expenses, losses, gains, that is profit and income is called as a nominal account. दोस्तों, हमें नॉमिनल अकाउंट देखना है तो नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो अकाउंट किसी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स या इनकम से रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अभी एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? जब हम स्पेंड करते हैं और हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उसके पीछे मिलता है, जैसे कि सैलरी, हमने सैलरी दे दी लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? उस पर्सन की सर्विस मिले 1 महीने के लिए। हमने रेंट पे किया, उसके बदले में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिला? वो जो प्रॉपर्टी थी वो हमने 1 मंथ के लिए यूज़ की। मतलब फ्रेंड, जब हम कोई अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो हमें उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे मोबाइल बिल, हमने कम्युनिकेशंस किया 1 महीने में तो उसका बिल हमने पे किया, मतलब हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है? एक्सपेंसेस। दूसरा होता है लॉसेस। लॉसेस मतलब जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं उसके पीछे कुछ भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है, तब उसे कहता है लॉसेस। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो एक्सपेंसेस, अगर नहीं मिलता है तो लॉसेस। जैसे कि कोई चीज़ हमने 10,000 में खरीदी और उसको हमने 8,000 में बेच दिया, तो 10,000 के गुड्स हम 8,000 में बेच रहे हैं, वी सफ़र अ लॉस। यहाँ पर हमें 2,000 लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है लेकिन हमारा लॉस हो गया 2,000 का। तो लॉस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा प्रॉफिट मतलब गेन। तो प्रॉफिट मतलब क्या? जब हम कोई प्रोडक्ट 10,000 को परचेस करते हैं और उसको ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, जैसे कि 12,000 को बेच दिया, तो यहाँ पे 2,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। सो अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड लास्ट वन इज इनकम। इनकम मतलब हमें किसी भी सोर्स से अगर पैसे मिलते हैं तो वो बन जाता है हमारा इनकम। जैसे कि हमने सैलरी मिल गई, इनकम है। हमें रेंट मिला, इनकम है। हमने बैंक में डिपॉजिट भरे थे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, दैट इज़ आवर इनकम। हमने लॉटरी का टिकट खरीदा, पैसे मिल गए, दैट इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड इनकम। सो द फ्रेंड्स, पैसे हमारे पास आना, चाहे वो सोर्स कौन सा भी हो, उसे हम कहते हैं इनकम। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस मतलब प्रॉफिट और इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट रहेगा उसे हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल के 2 पार्ट, दैट इज़ रियल और नॉमिनल अकाउंट, कैसे पहचाने जा सकते हैं और उसमें क्या क्या आ सकता है ये हमने डिस्कस किया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। And the rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Yes, my friend. What is the rule? Debit the receiver or credit the giver. A person who is the receiver of these things is debit and person who is giver of the things is a credit. देखो दोस्तों, पहला रूल हमें देखना है और ये जो रूल्स हमें देखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों। तो पहला रूल हम देखने जा रहे हैं पर्सन अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है उसे।
और पर्सन में क्या क्या आता है, याद आ रहा है आपको? यस, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यस माय फ्रेंड, इन सभी से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीवर है, जो उसको कुछ मिल रहा है, उसको हम डेबिट देंगे, और जो बंदा कुछ गिवर है, मतलब जो कुछ दे रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये रूल कैसे अप्लाई करता है। Here I am taking a simple example, friends. Mr. Gore sold his car to Mr. Kale. So, friends, Mr. Gore sold his car to Mr. Kale. So, my friend, in this example, there are two persons. One is Gore and another one is Kale. So, Gore sold his car to Kale. That's why Gore is the giver of the car. Gore is the giver of the car and Kale is the receiver of the car. Okay, so both are the person and we have to apply here the rule of personal account, that is debit the receiver, credit the giver. My friend, who is a receiver? Mr. Kale is a receiver, so Kale is debit. Debit the receiver, so Kale is debit. And who is the giver of the car? Yes, Mr. Gore is the giver of the car, so Mr. Gore is credit. तो देखिए दोस्तों, रूल कैसे अप्लाई होता है मैंने आपको एग्जाम्पल के दूर बता रहा हूँ। एक मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया, गोरे ने अपनी कार काले को बेच दी। गोरे ने अपनी कार काले को बेच दी। तो ये जो एग्जाम्पल था इसमें दो पर्सन्स थे, दो अकाउंट्स थे, और एक था गोरे अकाउंट, दूसरा था काले। और गोरे और काले दोनों भी पर्सन हैं, तो दोनों पर्सन होने की वजह से दोनों को एक ही रूल अप्लाई करेगा, वो है पर्सनल का रूल। और पर्सनल का रूल अभी हमने देखा था, क्या रूल है वो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस माय फ्रेंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ है कार बेचने का, इसमें रिसीवर और गिवर हमें ढूंढना है। तो गोरे ने बेची काले को, मतलब काले इज़ द रिसीवर, काले के पास कार आ गई, काले रिसीवर हो गया, इसलिए काले डेबिट द रिसीवर, काले को हम डेबिट देंगे क्योंकि वो रिसीवर है। और गोरे कौन है? गिवर है। तो गिवर के लिए क्या है? क्रेडिट द गिवर, मतलब गिवर को क्या देना है? क्रेडिट हमें देना है। तो काले को हो गया डेबिट और गोरे को हो गया क्रेडिट। तो इस तरीके से दोस्तों ये रूल अप्लाई होता है। चलो देखते हैं और एक एग्जाम्पल। Mr. Khare purchased TV from Rupa Electronics. Friends, again I am explaining it. Mr. Khare purchased TV from Rupa Electronics. तो फ्रेंड यहाँ पर भी आपको क्या करना है? दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, कौन सा अकाउंट है? पहला एकदम सही मिस्टर खरे, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? एकदम सही रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स। यस माय फ्रेंड, खरे इज द इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट और रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है एक्ट द्वारा, उसे हम कहते हैं पर्सन। तो रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। तो आइए, खरे भी पर्सन है, रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल अप्लाई कीजिए। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों, खरे ने परचेस किया टीवी, मतलब टीवी किसके पास आया? खरे के पास आया। तो खरे कौन हो गया? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो खरे को हमें क्या देना पड़ेगा? डेबिट। वाई? बिकॉज ही इज़ अ रिसीवर ऑफ द टीवी, वो टीवी का रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट देना पड़ेगा। और हु इज़ द गिवर? यस माय फ्रेंड, रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द गिवर, तो हमें रूपा को तो क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का रूल है। तो रूल के हिसाब से जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो गिवर कौन है यहाँ पर? टीवी देने वाला कौन था? रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो रूपा इलेक्ट्रॉनिक्स गिवर है, मतलब टीवी देने वाला है, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से दोस्तों हमें डेबिट और क्रेडिट हर एक अकाउंट को एप्लीकेबल करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ रियल अकाउंट की तरफ। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Yes my friend, the account which is related to any assets or goods is called as real account. Now what is the rule? Debit what comes in, whatever comes in the business we give the debit, and whatever goes out from the business we give the credit. जी हाँ दोस्तों, रियल अकाउंट का रूल क्या है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अपने पास आ रहा है उसको डेबिट दीजिए, और जो अपने पास से जा रहा है मतलब क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो देखते हैं इसे कैसे एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹20,000। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, आइए इसमें अकाउंट्स फाइंड आउट करते हैं। परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000, इसमें कौन कौन से अकाउंट है? यस, एक है कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर और कैश दोनों भी अपनी एसेट्स है। तो एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। क्या रूल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस माय फ्रेंड, तो हमने कंप्यूटर परचेस किया, व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन, और जो कम्स इन उसे हम क्या करते हैं? डेबिट देते हैं। और दूसरा क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हमने कंप्यूटर परचेस किया तो व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया? यस, हमने कैश ये दे दी, मतलब कैश इज गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट है तो कैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो रियल अकाउंट का रूल होता है वो हम अप्लाई करते हैं। देखिए अभी अगला एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए। ये है एग्जाम्पल, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। नाउ यू सॉल्व इट। हाउ यू सॉल्व? You have to identify the two accounts, then you have to identify the types of accounts, then you have to apply the rule. जी हाँ, आपको पहले इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट ढूंढने हैं। सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, तो कौन कौन से अकाउंट आए? एकदम सही, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा बिल्कुल सही, कैश अकाउंट। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर इज रियल अकाउंट और कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। तो रूल अप्लाई कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आपने सेल किया मतलब सोल्ड किया मतलब बेच दिया, तो फर्नीचर कम्स इन का गोज आउट। एग्जैक्टली, फर्नीचर इज गोज आउट। मतलब क्या करेंगे आप? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर गोज आउट है, फर्नीचर को हम क्रेडिट देंगे। और कैश, कैश भी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आपने फर्नीचर बेचा तो अपने पास कैश कम्स इन है, क्या गोज आउट है? जी हाँ, कैश इज कम्स इन। तो जब कैश कम्स इन है तो उसको क्या रूल आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को आएगा डेबिट और फर्नीचर को आएगा क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से रियल अकाउंट का रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज debit all expenses and losses, credit all gains and income. Yes my friend, all expenses and losses, for all expenses and losses we have to give debit, and for all types of gains and income we have to give credit. Now go through the example. Here the example is paid a salary of ₹9,000. Friends, this is our regular example. We paid the salary to your employee of ₹9,000. Now here identify the two accounts. Yes, one is salary, another one is cash. So salary is the nominal account. So what is the rule of nominal account? And cash is the real account. So friend, we have to apply the two rules. For salary we have to apply nominal account rule, and for cash we have to apply the rule of real account. So first rule of nominal account, debit all expenses and losses, credit all gains and income. Here when we paid the salary, that is our expenses. So what is debit all expenses and losses? So we have to give debit to the salary account. And for cash is the real account, and the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. My friends, when we paid the salary, what happened? Cash comes in or cash goes out? Exactly, when we paid the salary, cash is goes out from us, and that's why debit what comes in, credit what goes out. जी हाँ दोस्तों, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ। हमने जब सैलरी पे की तो दो अकाउंट आए, सैलरी और कैश। सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट और कैश होता है रियल अकाउंट। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। सैलरी को अप्लाई करना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और कैश को अप्लाई करना पड़ेगा हमें रियल अकाउंट का रूल। तो चलिए नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जी हाँ दोस्तों, जब हम सैलरी पे करते हैं तो क्या होता है? दैट इज़ अवर एक्सपेंसेस। अगर सैलरी मिलती है तो इनकम, लेकिन सैलरी पे कर रहे हैं मतलब हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमारा रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी को हमें क्या देना होगा? डेबिट, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस है।
अभी बढ़ते हैं कैश की तरफ। कैश है रियल अकाउंट, क्योंकि हमारी एसेट्स है कैश, तो एसेट से रिलेटेड होता है रियल अकाउंट, तो रियल का रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस फ्रेंड्स, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश कम्स इन है क्या कैश गोज आउट है? बिल्कुल सही कहा आपने, कैश हमारे पास से गोज आउट है, कैश जा रही है हमारे पास से। तो हमारा रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट दो। तो हम कैश को क्या देंगे? क्रेडिट। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। रिसीव्ड रेंट ₹5,000। यस फ्रेंड, आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स। हमने रेंट पे किया है, हमें रिसीव्ड हुआ है, सॉरी, रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है 5,000। तो कौन कौन से अकाउंट आए? रेंट और कैश। एग्जैक्टली किस टाइप से अकाउंट है रेंट? रेंट होता है नॉमिनल अकाउंट और कैश होता है रियल अकाउंट। तो यहाँ पर भी हमें पिछले एग्जाम्पल की तरह दोनों रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले रेंट के लिए रूल अप्लाई करते हैं, मतलब नॉमिनल का रूल हमें देखना पड़ेगा। और क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो जब हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है, सो इट इज़ अवर इनकम। जब हमें रेंट मिलता है तो हमारा इनकम है, अगर हम रेंट पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस है। यहाँ पर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज़ अवर इनकम। तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो क्रेडिट किसे जाता है? गेन्स और इनकम, तो इनकम को। तो रेंट हमारा इनकम है, इसलिए इनकम को हम देंगे क्रेडिट, दैट इज़ रेंट को क्या जाएगा? क्रेडिट जाएगा दोस्तों। अभी कैश अकाउंट की तरफ चलते हैं। कैश अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस माय फ्रेंड, जब हमें रेंट रिसीव्ड होता है तो कैश हमें हमारे पास आती है, कम्स इन है क्या? कैश गोज आउट है, हमारे पास से जा रही है। एग्जैक्टली कैश क्या होता है? जब रेंट मिलता है तो कैश मिलती है, मतलब कैश इज कम्स इन। कम्स इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हमें क्या देना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट हमने देखे, इसके रूल्स हमने देखे और वो कैसे अप्लाई होते हैं, ये हमने एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल क्या होता है और उसे किस तरीके से ये जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है वो कैसे लिखे जाते हैं और ये जो रूल्स हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जर्नल। थैंक यू।